Here the tangent inverse bracket 2 cos bracket 2 sin inverse 1 by 2 bracket close. We need to find the value of this expression. For this, tangent of inverse 2 of cos, सबसे अंदर वाली ब्रैकेट को सबसे पहले हैंडल करेंगे. सो व्हाट इज द साइन इनवर्स 1 by 2? साइन इनवर्स 1 by 2 कहाँ पे होता है? 30 पे, विच इज पाई बाय 6. सो इट कम्स tangent inverse 2 of cos 2 3 which become pi by 3 bracket close, and tangent inverse 2 cos 60 पे जो वैल्यू रहती है which is again 1 by 2, and tangent inverse 1 which is equal to pi by 4. This is the value for the given expression. The expression, for this expression we need to find out the value what comes after. इसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पर tangent of 1 by 2 sin inverse and cos inverse इंडिविजुअली एक एक करके सॉल्व करते हैं. पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देन सी what will we have. वेरी फर्स्ट साइन इनवर्स, मैं सबसे पहले इसको हैंडल करने जा रहा हूँ, 2x 1 plus x square. So what we will do by substituting the value, by put the value x equals to tangent of थीटा, और जैसे यहाँ पे हम रखते हैं 2 of टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. सो दिस टर्न्स, इसकी एक वैल्यू रहती है विच इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन ऑफ 2 ऑफ एंगल. ये साइन डबल एंगल का फॉर्मूला होता है. अगर आप इसको एक्सप्लेन करके देखना चाहते हो तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. टेंजेंट ऑफ दिस वन 1 प्लस मीन टू से कि ये किस तरह से साइन ऑफ 2 डबल एंगल में कन्वर्ट होता है. ये रफली आप देख सकते हैं यहाँ पे, साइन अपॉन कॉस, दिस इज सेकेंड स्क्वायर 2 ऑफ साइन कॉस 1 इंटू cos square, and this is 2 sine of angle, this which comes sine of डबल एंगल का फॉर्मूला ये तैयार हो जाता है. इस तरह से हमने 2 टेंजेंट ऑफ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर को साइन 2 ऑफ एंगल में कन्वर्ट किया, मतलब उसकी जगह पे उसकी वैल्यू लिखी, एंड दिस इज 2 ऑफ एंगल. यहाँ से हमने, अगर आप देखें, दिस वन इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x which is 2 tangent inverse x. Now take this one. Here for the cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square, say the value y is equals to, substituting the y which is tangent of phi. Last time we substituted the tangent theta, we take this angle separate, and on substituting cos inverse 1 minus tangent square phi upon 1 plus tangent square phi. Here similarly, as we find the 2 tangent upon 1 plus tangent square is sine of double angle, it is the cos of double angle. So in the last what we have, this is 2 of phi. So this cos inverse, this one is equals to 2 of phi, and by phi in the inverse phi in term of y, we can write this like this one. So यहाँ पर साइन इनवर्स की वैल्यू ये और cos इनवर्स की वैल्यू हमारे पास 2 of inverse of tangent y, and sin inverse this one is equals to 2 of inverse of tangent x. Now come to this part. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेन पार्ट या कह लो जो मेन हमें पूछा गया था सॉर्ट आउट करने के लिए, विच इज 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर cos inverse So this is tangent
1/2 साइन इनवर्स ऑफ 2x 1 plus x square is 2 tangent inverse x, or cos inverse this one which comes to 2 tangent inverse y. Here by taking 2 common, what we left inside tangent of tangent inverse x, tangent inverse y, x plus tangent inverse y for the condition सेम इसी कंडीशन के लिए what this tangent inverse x plus tangent inverse y turns into tangent inverse x plus y upon 1 minus xy. Now from this one, from 1 फाइनल आंसर लेने के लिए हमारे पास है टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y. हमें करना क्या है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y की जगह पे हमें ये वैल्यू रिप्लेस करनी है. टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. While this finally इस पूरे इक्वेशन का जो हमारे पास आंसर बनेगा विच इज x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. वी नीड टू फाइंड आउट साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई बाय 3. So range of the sine inverse is minus pi by 2 and pi by 2. Get the answer in the range. Very first what will we do, क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन पाई माइनस पाई बाय 3. सो here 3 पाई माइनस पाई बिकम 2 पाई बाय 3. इसकी ट्रांसफॉर्मेशन इसमें करेंगे. इन द सेकेंड क्वाड्रेंट द साइन रिमेन्स साइन and now it comes pi by 3 which is inside the, this becomes the 60 which is lies in the range of minus pi by 2 to pi by 2. but अगर हम इसको जिस तरह से हमने यहाँ सॉर्ट आउट किया, लुक एट इस तरह से हम यहाँ पे सॉर्ट आउट किया है, अगर यहीं पे भी सॉर्ट आउट कर देंगे तो 2 pi by 3 which comes 120 which is not in the range. so that's why we very first हमने क्या किया, हमने इसको इसकी रेंज में लेकर आने के लिए इसको पहले शिफ्ट किया सेकंड क्वाड्रेंट में. एंड देन हियर फॉर द आंसर ऑफ टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3 पाई बाय 4, अगर हम इसको यहीं से सॉर्ट आउट करते हैं तो 3 पाई बाय 4 इसको चेक करेंगे तो जो वैल्यू है इस रेंज में नहीं आएगी. सो इसको इस रेंज में लेके आने के लिए सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री 11th की मदद से इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट करेंगे विच इज पाई माइनस पाई बाय 4 एंड फॉर द सेकेंड क्वाड्रेंट इट कम्स माइनस ऑफ टेंजेंट पाई बाय 4 बिकॉज ऑफ ना ऑड फंक्शन इट कम्स आउट एंड टेंजेंट पाई बाय 4 it become minus of pi by 4 which you can see clearly the answer is in minus pi by 2 or pi by 2 90 की. this is the expression trigonometric as inverse trigonometric expression. इसका आंसर हमें बनाना है. तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन में सॉल्व किए उनमें से ये एक है जो हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से करने वाले हैं. वो कैसे, वेरी फर्स्ट हमने अभी टेंजेंट इनवर्स एंड प्लस टेंजेंट इनवर्स की आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया है. अभी तक यहाँ पर हमारे पास साइन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, इसकी कोई भी जुगलबंदी या इसकी कोई भी ऐसी आइडेंटिटी नहीं है जो एक साथ इकट्ठी आती हो, राइट. तो इसकी आइडेंटिटी को एक साथ लेके आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स को दोनों को टेंजेंट इनवर्स में लेके जाएंगे. ये आपके लिए वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट होगा किस तरह से साइन इनवर्स को और किस तरह से कॉट इनवर्स को टेंजेंट में लेके जाना है, या किसी और में भी लेके जा सकते हैं. फ्रॉम हेयर साइन इनवर्स, लुक एट हेयर फॉर द साइन इनवर्स
3/5, which is, if we look at the right angle triangle, this is the perpendicular upon hypotenuse. If this is the perpendicular, this is the hypotenuse. By using the Pythagoras theorem, this become the 4, the base become the 4 trigonometric ratios, और we can say side of the right angle triangle. ये क्या बनती है, अगर ये साइन इनवर्स, साइन और साइन इनवर्स रहता तो P और H के साथ ही है, तो अगर P अगर आपका परपेंडिकुलर है, H आपका हाइपोटेन्यूज है, तो उसके इन दोनों के बिहाफ के ऊपर जो बेस आपके बनेगा वो आपका 4 बनेगा. फॉर दैट टेंजेंट इनवर्स क्या बन जाएगा आपके पास, टेंजेंट इनवर्स आपका P/B एंड द परपेंडिकुलर एंड द बेस इज 4. तो यहाँ से ये वैल्यू इस रेशो के बिहाफ के ऊपर जो आपका बेस आएगा, तो इसके कंपैरेटिवली इसी सिचुएशन में साइन इनवर्स के साथ टेंजेंट इनवर्स ये बनेगा. अब इस सिचुएशन में चलते हैं कॉट इनवर्स के साथ. कॉट इनवर्स 3/2, और क्लियरली आप जानते हैं कि कॉट विच इज इनवर्स ऑफ टेंजेंट, तो आप इसको 2/3 ले सकते हैं. सो इसकी रिप्लेसमेंट टेंजेंट इनवर्स में इसके साथ कॉट की अगर आप ऐसे बनाकर भी करना चाहो तो कर सकते हो, बट करने की ज़रूरत नहीं है. सीधा सीधा ही ये B/P होता है, ये P/B होता है, तो यहाँ से 2/3. नाउ चेंज दिस वन here, which is tangent inverse 3/4 plus tangent inverse 2/3. अगर थोड़ी देर पहले की अगर हम बात करें, वहाँ पे एक कंडीशन थी. The last we have checked out a condition that the mod of x which is less than 1 where y greater than 0 and the product of x y which is less than 1. देखिए यहाँ इसी की कंडीशन. ओके, अगर देखें ये x है और ये y है, तो क्लियरली द 3/4 विच इज़ लेस देन 1, 3/4 पॉजिटिव भी है और इसकी जो भी डिवाइड करके वैल्यू आएगी लेस देन 1 ही है. एंड y 2/3 विच इज़ अगेन पॉजिटिव. एंड द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, लेट्स सी क्या बनता है. प्रोडक्ट ऑफ x y, दिस इज 3/4 मल्टीप्लाई 2/3 एंड इसको चेक करो, ये आपके पास 3 से 3 कैंसिल, 1/2 विच इज़ लेस देन हाफ. ये दोनों वैल्यूज अगर ये x है और ये y है, ये इस पूरी इक्वेशन के साथ सेटिस्फाई कर रही है, तो हम टेंजेंट इनवर्स जो लास्ट हमने इस्तेमाल किया था, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x एंड टेंजेंट इनवर्स y, इसको हमने टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x इंटू y में कन्वर्ट कर. इसी का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे आते हैं टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स. द वैल्यू ऑफ x इज 3/4, y इज 2/3 अपॉन 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट 3/4 एंड 2/3. सो कैंसल्ड, व्हाट वी हैव, 4 3 12, 3 3 9, 4 to the 8 अपॉन ये आपके पास -1/2. सो 1 - 1/2 इट कम्स, एक में से आधा गया, आधा ही बचा. यहाँ पर 8 8 16 प्लस 1 17 अपॉन 12. इसको सॉर्ट आउट करते हैं, 12 नीचे और ये रेसिप्रोकल हुआ, ये 6 and the last what we are left 17/6 will be the final answer of this problem.